TV 91 न्यूज़ 24 ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਫੋਰੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਨਾਮਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਅਚਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਫੋਰੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪੀ ਫੋਰੇਜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। डेथ हुई है तो की फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि उसके परिवार को, उसके जो बच्चे हैं, सबसे पहले उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा, चाहे वो जो भी पढ़ाई पढ़ना चाहता हो, वो पढ़ाई का पूरा खर्चा मैनेजमेंट कंपनी मालिक देगा। पहला फैसला तो ये हुआ। दूसरी हुआ कि फौरी तौर से 15 लाख रुपया मुआवजा के तौर से। तीसरा ये हुआ कि जो ESI और पेंशन से जो पेंशन लगेगा वो तो लगेगा, ESI PF इसका कवर्ड था, तो 100% ESI और PF से 15-16 हज़ार पेंशन पीड़ित परिवार को लगेगा। यही फैसला हुआ। केड़ी फैक्ट्री दे विच डेथ हुई है सर? ये है सर, आप देख लो, हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड, कंगनवाल, लुधियाना। पहले तो बहुत बड़ा जदोजहद करना पड़ा, लोगों को संघर्ष करना पड़ा, मजदूर ने बड़ा साथ दिया। अगर ये मजदूर साथ नहीं देता तो इतना बड़ा अमाउंट से फैसला नहीं होता। ये हम भी नहीं संभव मान सकते थे कि अगर ये मजदूर अंदर नहीं खड़ा होता काम छोड़कर तो ये फैसला नहीं होता। सर थोड़ी देर पहला उन्होंने ब्रदर आके कह के गए ने जी कि 12 लाख से फैसला होया। हाँ, 12 लाख तो हुआ था जब हम आए, फिर हम तो 20 लाख पर अड़े थे कि 20 लाख कम नहीं करेंगे। ब्रदर का फैसला तो कर लिया था 10 लाख में ही, फिर 12 लाख हुआ। फिर लास्ट जो पोजीशन हुआ, जो हमारे पास चेक अमाउंट सारा कुछ जो क्लियर हुआ, वो 15 लाख में। जब इंक्वायरी किया गया ना तो उसका भाई नहीं था। सारा काम लिखती रूप में हो गया जी। हाँ, लिखते वो जब इंक्वायरी किया गया तो वहाँ पे उसका भाई वो नहीं था, वो किसी तरह से भाई बना हुआ था। तो वहाँ पे जब मजदूर से पहचान कराया गया तो मजदूर ने बोला कि नहीं, भाई नहीं है। फिर उसके पत्नी से बात हुआ, उसके पत्नी से परिवार से बात होने के बाद 12 लाख का एक चेक और 3 लाख का एक चेक, 15 लाख में जो इनका कंपनसेशन है वो मिला है। उसके बाद जो उसका ESI PF का जो सहूलियत है वो उसको अलग है। कंपनसेशन जो है सहानुभूति कंपनी की तरफ से जो कंपनसेशन है वो 15 लाख है, जिसमें 3 लाख का चेक है अमृता कुमारी के नाम पे और एक 12 लाख का चेक है। उसका कोई भाई यहाँ पे काम नहीं करता था। हाँ, उन्होंने तो बच्चे वास्ते हैगा, उन्होंने तो बच्चे वास्ते इन्होंने कहा वा कि असं उन्होंने पढ़ावांगे जिथे तक पढ़ना चाहते हैं 25 साल तक। रंजीत, सिवान बिहार। उम्र 42-43 साल उम्र है। उसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। हाँ हाँ, लड़कियां या लड़का भी उनके? लड़की लड़का दोनों हैं। फैमिली सारी इत्थे रहती है उन्होंने? नहीं, पीछे। अब डेड बॉडी ले जा रहा है, डेड बॉडी के ले जाने का जो खर्चा है वो कंपनी देगा।
जो काम क्रिया का जो भी खर्चा है वो कंपनी ने कहा है कि मैं दूंगा। ओके सर, थैंक यू। इनका पेंशन वगैरह होगा, ये जो लगेगा वो पेंशन, उनके बच्चे का पढ़ने लिखने का खर्चा, और जो भी उनका वो इसके बाद भी वो जो प्रक्रिया 3-4 लाख रुपए मिलेगा, जो उनका बीमा उमा कंपनी का होता आपके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव तो नहीं बना के? नहीं जी, हम लोग में कोई प्रेशर नहीं। बाबू ने बोला कि जो भी है हम करेंगे, और भी ज्यादा भी बोले, बाबू बोला है कि और भी हम ज्यादा कर सकते कितने हैं। साल हो गए हमारे को वर्कर को काम करते हुए? उनको तो अभी जी पहले भी काम करके वो गए थे, दोबारा में वो थोड़ा कम हुआ था, आए हुए 2-3 महीना हुआ था। पहले 9 साल काम किए थे, दोबारा उनको बुलाया गया था, दोबारा से रीज्वाइनिंग हुआ है। रीज्वाइनिंग में उनको 2 महीना हुआ था। और कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं जी, बस ठीक है, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, जो बंदे चाह रहे थे हेल्प किया, और आगे बोल रहे हैं कि ये हमारे सब परिवार ही है, हम इनको पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। फैसला तो हो गया, फाइनल हो गया। 15 लाख रुपया प्लस बच्चों का जब तक एजुकेशन पढ़ाई है उसका खर्च कंपनी उठाएगी, और पेंशन वही 15,000 के करीब मिलेगा। यही फैसला हुआ, बाकी इस पे डन हो गया। कोई तो आटे उत्ते प्रेशर था नहीं किसी चीज नहीं का? नहीं, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं, परिवार के सहमति से हमने ये चीज़ फाइनल किया। और डेड बॉडी के मालिक ने खुद डेड बॉडी का है तो वो ना यहाँ से कंपनी सारा एम्बुलेंस देकर भेजेगी गांव, वहाँ से मतलब जो भी क्रियाक्रम में खर्चा होगा सारा कंपनी उठाएगी। ये भी बात हुआ। थैंक यू। 10 लाख चेक देंगे? चेक देंगे 10 लाख का। और बच्चों के लिए? बच्चे का पढ़ाई खर्चा 25 साल तक का, और शादी वगैरह का? और 15,000 रुपया पेंशन पर महीने। बच्चों की या? नहीं, बच्चे का पढ़ाई खर्चा टोटल अच्छा, जो स्कूल में का है। कोई पेंशन नहीं? मैडम का 15,000 पेंशन महीने का। का। ये कहाँ का रहने वाला था भाई? बिहार सिवान जिला। क्या नाम था इसका? रंजीत सिंह। पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय बैजनाथ सिंह। आप खुश हो आप? हाँ जी, हम खुश है जी। कोई दबाव? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव परेशान नहीं। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका भाई हूँ, उनका फुआ का लड़का हूँ। बड़े भाई हो? बड़े भाई उनका अंदर है, मैं उनका फुआ का लड़का हूँ। अच्छा, बुआ के लड़के हो आप? कोई प्रेशर तो नहीं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है।